Hello friends, welcome back to my channel Passionate Seva. In this video, we will learn some important previous year question paper of 2019. In this video, I will discuss Environmental Studies section, third section of the CTET paper 1. इस वीडियो में आज मैं आपके साथ Environmental Studies के कुछ previous year question डिस्कस करूंगी 2019 दिसंबर पेपर के. Hope you like my video, so please like, share and subscribe my channel and stay tuned with Passionate Seva. So move to our first question is question number 61. A person boarded an express train on 29 November 2019 at Surat, Gujarat from Nagarcoil, Kerala. The train departed from Surat at 19:45 hours and reached Nagarcoil at 11:45 hours on 1 December 2019. If the distance between the Surat and the Nagarcoil by train route is nearly 2120 km, the average speed of the train during this journey was. So the right option of this question is option number third is 50 km per hour. Now move to our next question is question number 2. Which one of the following is a weightlifter of international fame? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? So the right option of this question is option number 4 is Karnam Malleshwari. Karnam Malleshwari is the first woman of India who won the bronze medal in the Olympics. Karnam Malleshwari इंडिया की एक पहली प्रसिद्ध और फेमस ऐसी महिला है वेटलिफ्टर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में. Now move to our next question is question number 3. Which one of the following is a group of roots? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है जड़ों का? So the right option of this question is option number 4 carrot, beetroot and radish. इन तीनों ही वेजिटेबल्स में से ये जो वेजिटेबल्स है बेसिकली क्या होती हैं, ये रूट से बिलोंग करती हैं. These are called root vegetables. Now move to our next question is question number 4. Desert oak is a tree which is found in. रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? So the right option of this question is option number 2 Australia. Desert oak it is a tree which is found in Australia. Desert oak एक ऐसा ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस ट्री को कम वाटर की नीड होती है, इसको कम वाटर की नीड होती है ग्रो होने में. So move to our next question is question number 5. Consider the following statements about nepenthes are plants which hunt. ये बेसिकली सारी स्टेटमेंट्स हैं किसके बारे में? एक प्लांट के बारे में. एक हंटिंग प्लांट है जो एनिमल्स को प्लस इंसेक्ट्स को ईट कर लेता है जिसका नाम है nepenthes. So option number 1 is this plant is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. Option number B, it has a picture like shape and the mouth is covered by the leaf. Option number C, it can trap and eat only small insects. या option number D, it emits a pleasant sound to attract small insects which get trapped and cannot get out. So the right option of this question is option number 1 A and B. बेसिकली जो नेपेंथीज प्लांट है ये क्या है? एक हंटिंग प्लांट है जो फाउंड होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में. ये एक पिक्चर टाइप का शेप प्लांट है जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या मॉस्किटोज होते हैं उनको ये ईट कर लेता है. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी. Now move to our next question. It's question number 6. In which of the following states of India is Dandi seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before Independence Day? महात्मा गांधी ने जहाँ नमक आंदोलन को तोड़ा था और उन्होंने जो है सी से नमक बनाया था, वो जो इंसिडेंट है वो किस स्टेट में हुआ था? सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 गुजरात. गुजरात में महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद करने के लिए नमक का निर्माण किया था जहाँ उन्होंने पद यात्रा की थी जिसे हम डांडी मार्च कहते हैं. Now move to our next question is question number 67. उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कम कपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह कौन सी बीमारी है? सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया. मलेरिया आपकी ऐसी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जिसका जो उपाय है वो क्या है कि चिंचोना ट्री का यूज़ किया जाता है, उसकी बाग का यूज़ किया जाता है इस रोग को हटाने के लिए. Now move to our next question is question number 68. A doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight lane from the doctor house to the hospital. So the doctor first goes to A which is 60 meter due east of X and goes to B which is 450 meter due to south of A. Then to C which is 120 meter due to west of B and finally reaches the hospital at Y which is 90 meter due north of C. With respect to the hospital, the correct direction of the doctor house is, so the right option of this question is option number 2 northwest. The direction of the doctor house is in the northwest direction.
Move to our next question is question number 9. Chiroi is the dance form of the people of. Chiroi नाच कहाँ के लोग करते हैं? So the right option of this question is option number 2, Mizoram. Chiroi is the folk dance of the Mizoram. So now I will discuss some of the dance form of other states also. So the dance form of the Jharkhand is Chau and Paika. Manipur dance form is Manipuri dance, and the Meghalaya dance form is Bala. Now move to our next question is question number 10. Neighboring states of Tamil Nadu. तमिल नाडु के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? So the right answer of this question is option number 4, जो तमिल नाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका. Move to our next question is question number 11, and it is related to NCF 2005. Which one of the following should not be the objective of teaching EVS at the primary level as per the NCF 2005? कौन से एक ऐसा NCF के अनुसार कौन सा एक ऐसा कथन है जो प्राइमरी अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. जो NCF 2005 है उसने ये कहा है कि जो हमें बच्चों को EVS पढ़ानी चाहिए वो हमें एक्सप्लोरेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए, डिस्कवरी मेथड का यूज़ करना चाहिए, जिससे बच्चे की जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्टिव वे में फॉर्म हो और उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी फॉर्म हो. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, टू डेवलप प्रिसाइज quantitative skills among children through understanding of environmental issues. पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है. तो ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है EVS का जो NCF ने कहा है. NCF ने हमेशा यही कहा है कि आप एक्सप्लोरेशन मेथड का यूज़ करें, डिस्कवरी मेथड का यूज़ करें बच्चे को EVS पढ़ाते समय, ताकि बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज डेवलप हो. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 कि हमें बच्चे के अंदर क्वांटिटेटिव स्किल्स को डेवलप नहीं करना, क्वालिटेटिव स्किल्स को डेवलप करना है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू डेवलप अ प्रीसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. Move to our next question is question number 12. EVS from classes 3rd to 5th is a subject area which integrate. EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली साइंस को अपने साथ इंटीग्रेट करता है और EVS हम बच्चे को 3rd to 5th क्लास से स्टार्ट कराते हैं. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन. कि हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो है कौन से सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, साइंस को, विज्ञान को, सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन को, और एनवायरमेंटल एजुकेशन विज्ञान की अवधारणाओं और उनके मुद्दों को हम इंक्लूड करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, ताकि बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो. Now move to our next question is question number 13. Which of the following is true about environmental studies? कि environmental पर्यावरण अध्ययन के बारे में कौन सा संदर्भ सही है? ऑप्शन नंबर 1, EVS is a subject taught from classes 1st to 5th. पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है. ऑप्शन नंबर 2, for classes 1st and 2nd, EVS is taught through language and mathematics. फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो environmental studies है वो हम लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं. ऑप्शन नंबर 3, for classes 1st, 2nd and 4th, issues of concerns of EVS are taught through language and mathematics. कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास में जो EVS की इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के कनेक्ट करके उनको पढ़ाते हैं. या फोर्थ ऑप्शन, फॉर क्लासेस 1st and 2nd, कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ EVS आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस. कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ को साइंस और सोशल साइंस के इश्यूज़ के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 इज फॉर क्लासेस 1st and 2nd, EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स. कि पहली और दूसरी कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं. Now move to our next question is question number 14. Children get a lot of space to learn EVS through exploration. This indicates that कि बच्चे के पास एक बहुत बढ़िया स्पेस होता है कि एक्सप्लोरेशन मेथड के थ्रू या डिस्कवरी मेथड के थ्रू वो पर्यावरण अध्ययन को अच्छे से समझ सके. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो EVS है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है. बेसिकली जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ हम जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों की साइंटिफिक स्किल्स डेवलप हो, प्लस उनके अंदर डिस्कवरी मेथड ऑल्सो डेवलप हो, जहाँ वो किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से और प्रैक्टिकल वे में समझ सकें.
Move to our next question is question number 15. Which of the following is a sub-theme under the theme suggested in the EVS syllabus? EVS के syllabus में 6 themes हैं और उन themes में से कौन सा एक example है sub-theme का? So the right option of this question is option number 3 animals. Animals क्या है? एक sub-theme है environmental studies की. बाकी family and friends, foods and things we do, make and do, these are the themes of the environmental studies syllabus and the sub-theme is option number 3 animal. Move to our next question is question number 16. Which of the following is a desirable practice for an EVS teacher? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? कौन सा एक डिजायरेबल प्रैक्टिस है EVS टीचर की? So option number 1 is addressing multicultural dimensions of diverse classroom. Option number B, encouraging children to provide important information related to the concept of EVS. Option C is linear arrangement of 6 themes of EVS. या option number D, relying only in textbook. So the desirable practice of an EVS teacher is addressing multicultural dimensions of diverse classroom. कि हमारी क्लास में अगर डाइवर्सिटी है तो EVS की टीचर अलग अलग टीचिंग मेथड से किसी भी कंसेप्ट को टीच करेगी, क्योंकि उसको डाइवर्सिटी को कैटर करना है, प्लस उसको क्लासरूम के अंदर एक यूनिटी और डाइवर्सिटी क्रिएट करनी है जहां हर बच्चे के अपने अपने इंडिविजुअल फेस होते हैं और उन्हीं इंडिविजुअल फेस को इंक्लूड करके उसे अपने टीचिंग मेथड का यूज़ करके किसी भी कंसेप्ट को टीच करना है. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77. निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के अंदर जो हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं उन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने से कौन कौन सी हमारी स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों का सक्रिय भाग लेना. ऑप्शन नंबर बी बच्चों के समुदाय के सदस्य. ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें. ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा. तो हम बच्चे को जो है एक्सप्लोरेशन मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं, हम बच्चे को रूट मेमोराइजेशन नहीं करवाते, क्योंकि NCF 2005 ने सजेस्ट किया है कि रूट मेमोराइजेशन इज़ द रियल कॉज ऑफ द लर्निंग. बेसिकली जो है रूट मेमोराइजेशन जो है बच्चों के ज्ञान को क्या करता है, बांधता है, उनको डाइवर्स नहीं करता. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 A, B and C कि हम बच्चों के अंदर EVS पढ़ाते समय उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेट करने में उनकी भागीदारी में उनको सपोर्ट करते हैं. एंड द थर्ड वन कि हम EVS टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं किसी भी कंसेप्ट को टीच करने के लिए. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 A, B and C. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है. अगर हमें बच्चों को इफेक्टिवली टीच करना है एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट तो हमें किस तरीके का यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 नैरेटिव्स वृतांत का. ऑप्शन नंबर बी स्टोरीज कहानियों का. ऑप्शन नंबर सी इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय अ टीचर, जो शिक्षक है वो किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे. या ऑप्शन नंबर डी इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय द टीचर, टीचर कंसेप्ट मैप्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू एनवायरमेंटल स्टडी जो सब्जेक्ट है उसको टीच करें. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 A and B कि हम वृतांत और स्टोरीज का यूज कर सकते हैं EVS को बहुत अच्छे से टीच करने के लिए स्टूडेंट्स को. Now move to our next question is question number 19. What are the objectives of EVS teacher who encourages his or her children to observe animals and make pictures on their own is are? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा क्या क्या बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? So the right option of this question is option number 4 A, B and C कि हमें बच्चों के अंदर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी डेवलप करनी है. साथ साथ जो बच्चे हैं जब वो जानवरों की जो पिक्चर्स है क्रिएट करेंगे, एनिमल्स की पिक्चर्स क्रिएट करेंगे तो वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और उन एनिमल्स के नाम याद रखेंगे और उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस डेवलप होगी किसी भी एनिमल की पिक्चर को याद करने के लिए, जिससे उनकी प्रीवियस नॉलेज भी इंक्रीज होगी. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 A, B and C. Move to our next question is question number 20. In EVS learning of crafts and arts while working in groups is encouraged because EVS में जो हम क्राफ्ट और आर्ट मेकिंग करते हैं वो क्यों encourage किया जाता है, क्या उसकी स्टेटमेंट्स हैं? So option number A is group learning is easier and very effective strategy for teachers to tackle the problem of indiscipline of the class. Group learning एक बहुत अच्छा वे है जहाँ जो टीचर है वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है इनडिसिप्लिन क्लास में. ऑप्शन बी ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पेयर लर्निंग. ग्रुप लर्निंग से क्या होती है कि बच्चे एक दूसरे से सीखता है.
देन ऑप्शन सी इज ग्रुप लर्निंग इंप्रूव सोशल इंट्रैक्शन, की ग्रुप लर्निंग से क्या होती है, बच्चों के बीच में सोशल इंट्रैक्शन होती है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से नई नई चीजें सीखता है। ऑप्शन डी ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम, ग्रुप लर्निंग से बेसिकली क्या होती है कि कम टाइम में टीचर अच्छे से ज्यादा कंसेप्ट को इजीली समझा सकती है, जिससे उसका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड बी एंड सी। ग्रुप लर्निंग बेसिकली क्या करती है, ग्रुप लर्निंग से बच्चों की लर्निंग होती है और साइड बाय साइड ग्रुप लर्निंग से बच्चों के अंदर सोशल इंट्रैक्शन एस्टैब्लिश होता है और बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट होती है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड बी एंड सी। Now move to our next question is question number 21. Which of the following is are the most effective resource of EVS learning? EVS की learning को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें किस resource का use करना होगा? So the right option of this question is option number third A, B and C कि हम family members का use कर सकते हैं, members of a community का use कर सकते हैं, समाचार पत्रों का भी हम use कर सकते हैं. So these three are the effective resource for the EVS learning. Now move to our next question is question number 22. Which of the following principle of learning is followed in EVS? EVS के करिकुलम में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है? So the right option of this question is option number 4 known to unknown, कि जो बच्चा है अपनी प्रीवियस नॉलेज ऐड करेगा। पहले बच्चे को ये पता था कि जो डॉग्स है वो ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, फिर बाद में बच्चे को ये समझ में आया, जब उसने देखा, उसको ऑब्जर्व किया उस एनिमल को, तो उसको ये समझ में आया बेसिकली जो डॉग है उसके 4 लेग्स है, वो एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो बच्चा कहाँ जाता है, अननोन से नोन की तरफ जाता है। जब उसको कुछ नहीं पता होता फिर उसके अंदर ऐड होती है नॉलेज, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं पियाजे की थ्योरी में। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 नोन टू अननोन। Now move to our next question is question number 23. Which of the following is not a tool for formative assessment of learning in EVS? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का रचनात्मक आंकलन नहीं है, इवैल्यूएटिव टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, जैसे UT1 UT2, जो बेसिकली बच्चे की जो एरर होती है नॉलेज को, उसको वो रिप्लेस करके उसकी एड ऑन करते हैं उसकी नॉलेज को, और साइड बाय साइड उसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट क्या है, एक समेटिव असेसमेंट टेस्ट है, एक ऐसे का पार्ट है, तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। Now move to our next question is question number 24. Which of the following should be avoided while assessing children in EVS? कौन सी ऐसी चीज़ है जब हम EVS करिकुलम पढ़ाते समय अवॉइड करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या हम बच्चों को उनकी मोरालिटी सिखाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है? ऑप्शन नंबर 2 डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ EVS टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5, कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखे पर हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट, की हम असेसमेंट के लिए इंडिकेटर्स का यूज करें। या 4th क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, या हम बच्चों को सीखने के लिए गुणात्मक आकलन करें। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। Now move to our next question is question number 25. एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करे जिससे बच्चों को इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ में आ जाए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। जो टीचर है वो इस एक्टिविटी के थ्रू कि बच्चे जो है एक्सप्लोर करेंगे, वो ये जानेंगे कि जब भी हम कोई चींटियों के पास हम कोई दाना डालते हैं या चीनी डालते हैं तो उससे क्या होती है, चींटियाँ अट्रैक्ट होकर वहाँ आती हैं उस चीज़ को खाने के लिए, जिससे उनका एक कंसेप्ट फॉर्मेशन बनेगी और इस पर जो टीचर है वो चर्चा भी कर सकती है और इस कंसेप्ट को बच्चों के सामने वो क्लियर भी कर सकती है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Now move to our next question is question number 26. Consider the following list. In this list, which one of the following is different from the others? इस लिस्ट में से कौन सी जो चीज़ है वो डिफरेंट है दूसरे एनिमल से? टोटोइस, क्रोकोडाइल, क्रो, डक और फिश. So the right option of this question is option number 2 क्रो. टोटोइस, क्रोकोडाइल, डक और फिश क्या है? वाटर बॉर्न एनिमल्स है जो बेसिकली वाटर में रहते हैं और सिर्फ इसमें जो एग्जाम्पल है क्रो. क्रो इज डिफरेंट बिकॉज क्रो इज अ बर्ड एंड द बर्ड इज फ्लाइंग ऑन द sky. So the right option of this question is option number 2 crow. So the right answer of this question is question number 87 is 2nd. A is 5th, B 1, C 2nd and D is 3rd. Move to our third last question is question number 28. Which one of the following bird species move its back, neck and forth with a jerk? ऐसा कौन सा प्रजाति का पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है? So the right answer of this question is option number 4 मैना.
Now move to our second last question is question number 29. Consider the following description of the houses. यहाँ इन स्टेटमेंट्स में बेसिकली डिस्क्रिप्शंस दे रखा है कि किस स्टेट में किस टाइप के जो हाउसेज हैं वो बिल्डअप होते हैं, तो आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पे आंसर देना है. ऑप्शन नंबर ए, इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन द मड हाउसेज विथ रूफ्स और थ्रॉनी बशेस. राजस्थान के गाँव में मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों में होती हैं वहाँ वो लोग रहते हैं. ऑप्शन नंबर बी, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बो पिलर्स. मनाली हिमाचल प्रदेश में जो घर हैं वो किससे बनते हैं? बांस के खंभों से बनते हैं. ऑप्शन नंबर सी, इन लेह 2 floor houses are made of stones. The ground floor is for animals and for storing necessary things. लद्दाख में जो 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं वो पत्थर के बनाए जाते हैं जिसमें नीचे वाली मंजिल पर जानवर रहते हैं और कुछ सामान रखा जाता है. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड ए एंड सी, कि लद्दाख में बेसिकली जो 2 हाउसेज बनाए जाते हैं वो दोनों घर पत्थरों से बनाए जाते हैं जिसमें से निचले वाले मंजिल पर कौन रहते हैं? जानवरों को रखा जाता है. एंड सेकेंड वन इज ए, कि राजस्थान में बेसिकली क्या होता है? राजस्थान में जो है आपकी विलेजेस में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड A and C. Move to our last question of this video is question number 30. Consider the following statement about elephants. अब हम elephants के बारे में कुछ statement जानेंगे. कौन से statements इसमें से सही है उस पर हमें टिक करना है. So option number A, elephants do not rest very much. They sleep 2 to 4 hours only in a day. Basically जो elephant है, जो हाथी है, वो 2 से 4 घंटे सोता है पूरे दिन में. Option B, an elephant can eat more than 200 kg of leaves and twigs in a day. जो एक बड़ा हाथी है वो एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है. ऑप्शन नंबर सी, दे लिव टू प्ले विद अ मड एंड वाटर एंड द मड कीप्स देयर स्किन कूल. जो हाथी है वो बेसिकली मिट्टी और पानी से खेलते हैं जिससे उनकी जो त्वचा है वो सॉफ्ट रहती है. ऑप्शन नंबर डी, इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग. अगर हम एलिफेंट के झुंड की बात करें तो एलिफेंट के झुंड में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल लेडी होती है वो हेड होती है उनके पूरे क्लैन की. सो द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड सी, डी एंड ए. अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ओन यूट्यूब चैनल पैशनेट सेवा एंड स्टे टर्न विद आवर लेटेस्ट अपडेट एंड एजुकेशनल अपडेट्स फॉर सीटेट पेपर 1, पेपर 2, DSSB, KVS, etc. Hope you like my video, so please like, share and subscribe my channel पैशनेट सेवा.